नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं किशोर मंच स्वयं प्रभा चैनल नंबर 31 और NCERT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए ये सेशन लेकर आए हैं 12 बजे। ये कहने को तो क्लास 8 का सोशल साइंस का चैप्टर है, लेकिन जो सब्जेक्ट है इसका हम सेशन 1 पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों को जान भी चुके हैं। मैंने भी अपना थोड़ा सा ज्ञानवर्धन किया था, क्योंकि जो टॉपिक था वो था वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। तो हमने सिर्फ व्यूअर्स को ही कवर किया था, जिसमें जामदानी के बारे में पढ़ा, मसलिन के बारे में पढ़ा और कमीज शब्द से भी मेरा वास्ता पड़ा था, जिसमें मैं फेल हो गया था। लेकिन फेल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कभी पास नहीं हो सकता। मैंने अपनी गलती को सुधार लिया है। मैंने सीख लिया है कि कमीज जो है एक अरेबियन वर्ड है, अरेबिक भाषा का वर्ड है। तो आगे बढ़ते हैं और ये मुझे जिसने सिखाया वो शख्स हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। मिस्टर वागीश कुमार झा का मैं स्वागत करूंगा, आप सबसे उनको मिलवाऊंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज वागीश जी से जानेंगे कि जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था उसका छोटा सा रिकैप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में, जिसमें भारत की एक अमूल्य धरोहर छिपी हुई है, जिसके बारे में हमने जाना कब से कब तक, यानी इतिहास के उन पन्नों में दर्ज उन्होंने वो जो सब बातें बताई थी कि कैसे वीविंग होती थी, कैसे जो फैमिलीज हैं जिनका ट्रेडिशनल बिजनेस है वीविंग को आगे बढ़ाना, वो ये सब आगे लेकर जा रहे थे, उसको और आगे बढ़ाएंगे आज। तो वागीश जी, अब आपके हाथ में है कमान। मैं सीखने के लिए बैठा हूं और आई एम श्योर मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो किशोर मंच के व्यूवर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, खासकर क्लास 8 के, उनके लिए क्या कुछ है आज हमारे पास। थैंक यू सर। आई एम गोइंग टू टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेम चैप्टर and today we are going to talk about the iron smelters and the factory workers. We touched upon the factory workers scenario in the case of the textile workers. Today we are going to talk about the iron smelters. But before I do that, let me do a quick recap of the previous chapter that we did, and I would like to take you to the PPT that I am going to present before you. So that is, so we started, this chapter is called Weaver, Iron Smelter and Factory Owners, and we talked about in the last thing that India was the largest producer of cotton textile around 1750. Yes. And it was renowned for its fine quality and exquisite craftsmanship. We were extensively traded in south and west, and the interesting part was that we looked at the various technologies that people used, and in some parts these technologies are still found out. This is one of the earliest and oldest prototype of charkha that you see here. And then we talked about the wood printing, and this wood block is to print that. Then we also talked about that the world was dominated by Indian textile in the 18th century, and all the traders who came here, they used to exchange gold and silver for the textile, absolutely fantastic textile that the craftsmen produced here in India. And then we look at some of the examples of these kind of printed textiles that they worked with, and then we saw that how the scene changed, and one act and two technology took the whole thing away from that. The act was the Calico Act of 1720, and the two technologies were the flying shuttle that you saw at that time, and also the spinning jenny, which was to one multi-spindle spinning frame. So in one go they could spin 8 or 9 or 10 or multiple kind of spindles in one go, and thus the production of yarn increased phenomenally. And then at the same time the industrialization was taking place in Britain, and the textile was the main industry, and with the advent of these people, the traditional weaving was hit, and all of them became out of work. Mostly the traditional craftsmen became out of work, and thousands of weavers in India were now thrown out of employment. Bengal weavers were hit the worst, because that was the most important part of the weaving. And then came a new weapon that Gandhi gave, and this was charkha. Yes. So that is a kind of a quick recap of what we did in the last session. And now we are going to start with the second part of the same chapter, which is iron smelting.
Okay. I also talked about one particular thing that I pointed out is that one of my students called up and asked me that which one to believe, sir. The textbook says that the spinning jenny was invented by John Kay in 1764, and the Wikipedia says that spinning jenny was invented by James Hargreaves. And there I proposed that it is not as a teacher. I am a teacher, I am not a preacher. I don't want my students to believe in what I say. Okay. I want them to find out their own facts. So how do they find, how they investigate the fact, they inquire about the fact. So how do they know that what the facts that are given to them are not something that is coming from the Vedas or some such kind of a scripture that cannot be questioned? The facts must be examined on the basis of the evidence and on the basis of their logical connections that one builds up. That was one of the major things that I follow as a teacher. The other thing that when we are going to talk about the iron smelting today, we are going to talk about the two other principles. Those two principles are that the facts or the textbook, that whatever is being taught about in the textbook must make connection with the students, must relate to their experience, and that experience may not be direct experience. Right. But then they must be able to engage reflectively with whatever is being given to them. Otherwise they don't feel any such kind of a affinity. There is no intimacy with the subjects that they are learning. Right. And they are only learning because it is given in the textbook, and that's all. The other part is that you must ask very, very interesting questions. You must not dumb down students. Students are not kind of somebody who has just to be filled up with some kind of a fact. Right. They are somebody who need to be excited by interesting questions, and they need to own up the topic. If they own up the topic, then only they get interested, and the topic kind of wakes up for them. The topic becomes alive. Right. So we are going to do the same thing with the iron smelters this time, and so I want to, Rahulji, I want to share with you something very interesting. When I was teaching this iron smelting chapter in my class, then I asked them, where all do we see iron around us? And I must tell you for the viewers that I was teaching in a metro school, and students had very, very interesting answers. I mean, they said that, okay, so iron means something वो काला वाला जो होता है ना, so that you want to say that कुछ काला काला जैसा होता है. So I was very startled. As a teacher, you must not take it for granted that आप जो बता रहे हैं वो बच्चों को आ रहा है या वो उसको जानते हैं वो. So that is not good thing. फिर I realized that उनके पीछे एक खिड़की थी, उस खिड़की में आयरन रॉड था, and that did not occur to them that वो आयरन रॉड को पॉइंट आउट करते कि hey, this is iron. But suddenly one child says that ये जो दीवार, ये किवाड़ जो है, उस किवाड़ की जो नॉब है वो आयरन की है. जैसे उसने कहा किवाड़ की नॉब आयरन की है, तो मुझे समझ में आया कि किसी और बच्चे ने कहा कि सर आपकी जो कंप्यूटर है, मेरी जो कंप्यूटर है वो भी आयरन की बनी हुई है. That was very, very interesting thing for me. उसके बाद कुछ स्ट्रेंज लेकिन सही आंसर आए. एक आंसर बच्चे ने कहा कि मैंने पालक के अंदर आयरन देखा है. ऐसे पालक के अंदर आयरन देखा है? हाँ बोले आयरन होता है ना पालक में, मम्मी बताती है आयरन होता है पालक में. ऐसे देखा कैसे तुमने? बोली तो होगा तो होता ही होगा, मम्मी तो गलत नहीं बोलेंगी, झूठ तो बोलेंगी नहीं मम्मी. दूसरे बच्चे ने और कमाल किया, उसने कहा कि सर आयरन तो मेरे खून में है. ठीक बात है, आयरन खून में है, उसी से हेमोग्लोबिन बनती है और बाकी सारी चीजें. बट आयरन क्या है, उनके आसपास जो चीजें हैं उनमें से वो आयरन को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं. ये तमाम सारी चीजें उनको बताई गई हैं कि आपके खून में लोहा होता है, आयरन होता है, या कि पालक में आयरन होता है, और वो जो बताया गया है उसको वो बोल रहे हैं. It is something like this, that you are aware of the calorific value of wheat, of lentil, of pulses, but you really don't know to identify where is wheat and what is barley and what is rice. ठीक है, उसके सामने अगर बच्चों के सामने रख दें कि गेहूं और जौ में डिफरेंशिएट करना, तो आई थिंक मेनी ऑफ
the metro people will flunk hands down. Right. उनको समझ में नहीं आया कि जौ और गेहूं में अंतर क्या होता है. So that is where the knowledge does not make sense and does not make one-to-one connection between Right. you and me. So that is one of the things that I realized, and इसलिए मैंने एकदम से बेसिक सवाल पूछा कि भाई लोहा होता क्या है जी. और उसके बाद आपने देखा कि कैसे कैसे उत्तर मेरे सामने आए. सो नॉलेज जो हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं है और जिसमें हमने रिफ्लेक्टिव एंगेजमेंट नहीं किया है, वो केवल किताबी ज्ञान है. यस. सो उस किताबी ज्ञान को किताब से बाहर निकालकर आपके अनुभव का हिस्सा बना, दैट इज द responsibility of a teacher. Yes. And as a teacher, I assume that responsibility very, very honestly and seriously. So what did I do with this? फिर मैंने क्या किया आयरन के बारे में. और टेक्स्ट बुक में जितनी बातें लिखी हुई हैं वो बातें तो बच्चा खुद ही पढ़ सकता है. बिल्कुल. मेरा काम उस टेक्स्ट बुक को पढ़ाना नहीं है. मेरे बच्चों को अंग्रेजी आती है, टेक्स्ट बुक में खूब अच्छे से लिखी हुई है जो सारी बातें लिखी हुई हैं. सो मेरा काम है बच्चों के अंदर उन बातों को जानने की प्यास जगाना. एक जिज्ञासु उनका होना बहुत जरूरी है. जिज्ञासु होना उनका जरूरी है. जी. दूसरा कि उसमें और बहुत सारी बातें हैं टेक्स्ट बुक में जो एज्यूम कर ली जाती हैं बच्चों के बारे में कि उनको पता होगा. जी. बट दे डोंट रियली नो इट. उनको इस बात की जानकारी नहीं है. मैं ऐसे हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने इस चैप्टर को आगे बढ़ाया. तो मैंने कहा कि आप अच्छा तो आयरन, अब देखिए कि आपके घर में कुछ क्राफ्ट्स होंगे और मैं एक ये जो आयरन का एक आप देख रहे हैं ये मैंने उनको दिखाया. ठीक है. वो अभी भी मैं बैग में लेके आया था, मैं रह गया वहीं. जी. तो ये जब देखा उन्होंने बोला हाँ मेरे घर में भी ऐसा है. फिर यू सी दैट ये वाले जो डेकोरेटिव आर्ट हैं आयरन के, ये बस्तर, नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स. हाँ, बस्तर के जो लोग हैं वो लोग बनाते हैं इसको. और देन सडनली दे रियलाइज दैट अच्छा ये तो हमारे घर में भी है. ओ दैट इज आयरन. ओके. ऑलराइट. उसके बाद फिर अच्छा भाई अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन की चर्चा है टेक्स्ट बुक में, बट वी डिड रियली अंडरस्टैंड. सो जैसे रॉट आयरन क्या होता है. ठीक है. ठीक है. सो रॉट आयरन जब हम बोलते हैं तो इसको हम ये कहते हैं कि रॉट जो है ये दिस इज बेसिकली वर्कड आयरन का स्वरूप है. वर्कड का पास्ट पार्टिसिपल है रॉट आयरन, उसका नाम हो गया रॉट. एंड इसका मतलब है कि ये आयरन का एलॉय है विथ वेरी लो कार्बन. आप देख रहे हैं कि इस प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ अलग अलग कलर्स मैंने डाले हैं. yes. तो मैं एलॉय को हाईलाइट कर रहा हूं, मैं लो कार्बन कंटेंट को हाईलाइट कर रहा हूं, और उसके बाद परसेंटेज जो है उस परसेंटेज को हाईलाइट कर रहा हूं. जैसे रॉट आयरन में 8.08% आयरन कार्बन होता है. आयरन में कार्बन होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग बिफोर व्हाट वी आर गोइंग टू टीच अबाउट, उसको उसकी जानकारी में. ये रॉट आयरन आपके स्कूल का गेट है, ये देखिए. सो आई गेव दिस एग्जांपल दैट अच्छा सो दिस इज रॉट आयरन. ओके. एंड देन व्हाट इज कास्ट आयरन. So cast iron is something where the iron is smelt and उसको पिघला के और उसके बाद एक खास तरह के मोल्ड में डाला जाता है. That is cast iron. और उस कास्ट आयरन में फिर आप देख रहे हैं कि उसमें 2.1% से लेकर के 4% तक उसमें कार्बन होता है. और उसके बाद उसमें स्लैग भी होता है. ये स्लैग क्या होता है? जी. आई एम पॉइंटिंग आउट दोज एंड आई एम टेलिंग माय स्टूडेंट्स दैट टेक केयर ऑफ द स्लैग. ओके. नाउ व्हाट इज द कास्ट आयरन. कास्ट आयरन का एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं. कास्ट आयरन जो आपके घर में कढ़ाई होती है, लोहे की कढ़ाई होती है, वो कास्ट आयरन की कढ़ाई होती है. उसी तरह से एक और शब्द है पिग आयरन. ये जो पिग आयरन है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है आयरन इंडस्ट्री का, जिसमें कि इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय स्मेल्टिंग आयरन ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस. और इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है. इसमें 3.8 से लेकर 4.7% तक कार्बन कंटेंट होता है. ओके. सो रॉट आयरन, कास्ट आयरन एंड पिग आयरन, these are the three key words that I am talking about. I am also talking about alloys, I am talking about slag, I am talking about ore. Okay. और ये सारी चीजें अगर ये सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर बच्चे को नहीं आती है, और आयरन में कार्बन की बात मैं कर रहा हूं,
अब बच्चा कोई पूछेगा कि आयरन में कार्बन कहाँ से आता है, बट आई एम होल्डिंग दैट टू क्रिएट ग्रेटर इंटरेस्ट इन दैट। अच्छा, तुम और सवाल पूछो, कुछ बोलो कि इसके बाद क्या होगा इसमें। देन आई गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट एंड आई से दैट, तब मैं कहता हूं कि अपने टेक्स्ट बुक में देखिए जहां की अगरिया कास्ट के बारे में आपके चर्चा की गई है। दिस इज एंड जनरली नोन एज कास्ट, बट this is not a caste. This is associated with those people who are iron smelters. Traditional iron smelters are known as agariyas. प्रोफेसर शीरीन रत्नागर ने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा है कि ये एक जेनेरिक नाम है, जो लोग भी लोहे का काम करते हैं उनको अगरियाज बोलते हैं। तो उसी तरह से जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि ये जो लोग हैं अगरियाज, गोंड ट्राइब के साथ जो लोग लोहे का काम करते हैं, इसमें जो अभी आपने कुछ एग्जाम्पल देखे जो घर में डेकोरेटिव आर्ट के तौर पर लगाए जाते हैं, उनमें से कई सारे गोंड अगरियाज बनाते हैं उस तरह के आर्ट्स को, जहाँ की आप मोमबत्ती रख सकते हैं, दिया रख सकते हैं और तरह तरह की चीजें, और वो उनके ट्रेडिशनल आर्ट का हिस्सा है। बिकॉज दीज वर द पीपल हु first time knew how to extract iron from the iron ore. Okay. And they have been working, so they are the original people जिनको आज हम exotic people मान रहे हैं। Okay. बहुत सारे लोग कहाँ से आए पुराने, और उन लोगों को लेके आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो आर्ट का जो पीस था, उस आर्ट के पीस को बनाने वाले कौन है? ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल्स कौन है? अगरियाज हैं। अगरियाज कौन है? ट्रेडिशनल लोहे का काम करने वाले जो लोग हैं उनको अगरियाज बुलाते हैं। और मध्य प्रदेश के बस्तर के जो ट्राइब में जितने सारे लोग हैं उन सबको अगरियाज के तौर पर हम बुलाते हैं। और उसी अगरियाज की कैटेगरी में आते हैं गडूलिया लोहार। ओके, ना गडूलिया लोहार कौन है? अब मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं सर, और मेरे बच्चे जानना चाहते हैं कि ये गडूलिया लोहार कौन है। ये सीजनली माइग्रेट करते हैं। इनको गडूलिया लोहार इसलिए कहते हैं कि ये अपने किसी घर में नहीं रहते, ये नोमैड हैं, यहाँ वहाँ चलते हैं, जाते सीजन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। एक गाड़ी है उनकी, गाड़िया लोहार भी उनको कहते हैं। एक गाड़ी है, वही उनका घर है। ओके, चलता फिरता घर है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। शब्दों को अगर हम समझें, जैसे जो नोमैड्स हैं उसके लिए उर्दू में शब्द है खाना बदोश जी। खाना मतलब होता है घर, हमारा गरीब खाना है जी, तो हमारे घर में आइए। और बदोश मतलब होता है कंधे पर जी, दोष मतलब कंधा। सो वो घर जो कंधे पर रहता है वो खाना बदोश कहते हैं, है ना। सो ये भी खाना बदोश है, पर उनका घर कंधों पर नहीं रहता, उनका घर गाड़ियों पर रहता है जी जी, ठीक है। वो हमने कहा कि गडूलिया लोहार जो हैं ये आपने देखा है कहीं? अब दिल्ली के बच्चे हैं, हमने कहा कहाँ सर, हम कहाँ देखेंगे गडूलिया लोहार को जी। हमने कहा तुम रोज आते हो और रोज तुम्हारी नजर उनके ऊपर पड़ती है, कभी जरा ध्यान से देखा करो। और उसके बाद एक बार हम एक छोटी सी फिल्म दिखाते हैं आपको गडूलिया लोहार के बारे में, जो मैंने अपने बच्चों को दिखाई, एंड उससे उनको अगर थोड़ी सी बात समझ में आती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे उसमें। ये गाड़ी है, इस गाड़ी से इनका सामान निकल रहा है, अब इनकी फैक्ट्री निकल रही है इस गाड़ी से। ये देखिए आप, ये मैंने देखा हुआ है। एक जगह उन्होंने साफ करी जी। अब आपको याद दिलाऊंगा मैं, आप भी रोज देखते होंगे जी जी। अभी कहाँ है वो? ये देखिए बच्चे का झूला भी उसमें बच्चे का झूला है उनका वहां पर। नहीं, इस बात का तजुर्बा है मेरे पास, आप सही कह रहे हैं। और वहाँ छोटे बच्चे सभी काम कर रहे हैं। देखिए वो बच्चा, वो अभी से सीख रहा है, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं जी। वो अप्रेंटिस है। देखिए जो इक्विपमेंट्स वो ठीक कर रहे हैं, 10 किलो 15 किलो का गन लेती है लोहे का। हाँ हाँ, वो तो पकड़ लेता। और वो क्या करती है, वो 10-15 किलो का लेके बस उसको मारती।
ये जो स्टीरियोटाइप है ना कि पुरुष काम करने वाला है जी। और औरतें खाना बनाने वाली हैं, उस स्टीरियोटाइप को पूरी तरह ब्रेक करता है ये सारी कम्युनिटी। बिल्कुल। यहाँ पर औरतें भी वही काम करती हैं जो पुरुष काम करते हैं, और उनसे ज्यादा कर रही हैं। उनसे ज्यादा कर रही हैं। ये जो गरम करके और एकदम लाल करके बाहर निकाला, उसको पीटा और उसके बाद पानी डाला, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। गरम करना, ठंडा करना, गरम करना, ठंडा करना। और वो काइंड ऑफ आर्ट भी है उनकी, उसी से निकल कर आती है वो चीज। वो आर्ट भी है और वो साइंस भी है। वो कैसे साइंस है वो अभी आप देखेंगे, क्योंकि जिस आग में उसको पकाया जा रहा है वो आग चारकोल है। ओके। और वो चारकोल कार्बन है, ओके, जो उस लोहे में इन्फ्यूज हो रहा है। ओके, ऑलराइट। अब ये देखिए, तो उनका काम घर के सामान बनाने का है जो घर में उपयोग में आते हैं, और ट्रांसपोर्ट के उपयोग में आते हैं। बैलगाड़ी का जो वो पहिया है वो बना रहे हैं। और बाकी ये देखिए ट्रेडिशनल तरीके से वो जो हवा की जा रही है, भौंकनी उसकी है, भौंकनी जी, वो देखिए वो इम्पोर्टेंट है। किस तरह से वो हवा कैप्चर करती है और उसके बाद हाथ से दबाती है और चल पड़े। अभी एक गांव में, एक मोहल्ले में उन्होंने कुछ अपनी सर्विस दी और फिर चल पड़े। हाँ, और उनको मालूम है कि उस जगह पे कब आना है, जब एक हार्वेस्टिंग का सीजन है, हार्वेस्टिंग का सीजन है, तब वो आए, क्योंकि उस समय खेती में काम आने वाली चीजों का उपयोग होता है और उनको फिर दोबारा उसके काम में। ये वाकई में उस समय की बात, मेरा खुद का जो निजी अनुभव है वो तकरीबन 1-1.5 दशक पुराना है, जब मैं ये चीज़ें देखता था। और आई एम श्योर, जैसे सर ने कहा कि जब वो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं और बच्चों से पूछ रहे हैं, तो है तो हमारे आसपास ही, लेकिन हमारी नज़र को दौड़ाने की ज़रूरत है और ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, बच्चों का जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जानने की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो कैसे जान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिर जब मैंने ये फिल्म दिखाई उनको, फिर मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं क्या, और मैं आपको एक बार फिर पीपीटी की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। मैंने पूछा कि आर दे फाउंड समवेयर एल्स, क्या ये कहीं और पाए जाते हैं जी। एंड देन दे सेड दैट आई हैव नॉट सीन इट। तो मैंने कहा कि बट यू डोंट लुक अराउंड योरसेल्फ, you are so consumed in yourself, so try to look around. I told them कि एक सप्ताह का समय है, आप लोग घर में स्कूल से आते समय नज़र दौड़ाइए और देखिए। और फिर उसके बाद जो हुआ वो एक आध बच्चों को नज़र आई, पर फिर मैंने कहा कि अब हम फील्ड वर्क के लिए चलेंगे और हम उनको छतरपुर के मेट्रो स्टेशन के पास ले गए। और ये देखिए, ये छतरपुर का मेट्रो स्टेशन है, जिसके ठीक नीचे ये आज भी गाड़ियाँ लोहार बैठे हुए हैं। ठीक है। इनमें अंतर एक ये है कि अब ये इनका गाड़ी है, वो गाड़ी अब पुरानी हो गई। 1984 में ये लोग यहाँ आए थे और आज भी मेट्रो के नीचे बैठे हैं और आज भी लोहे का काम करते हैं। मैं आपको जल्दी से 2-3 पिक्चर्स दिखाता हूँ जहाँ मेरे बच्चों को लेके मैं गया। मैंने कहा कि देखिए जरा कि लोहे के काम करने वाले लोग कैसे होते हैं। तो ये देखिए लोहे के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बच्चे हमारे देख रहे हैं उसको, और ये औरत जो है सो उनको एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि उनको सारे इक्विपमेंट्स के बारे में मालूम नहीं कि उसका काम क्या है। और ये प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर हमने कहा कि आप लोग इसको करिए, फाइंड आउट कि व्हाट आर द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स दैट दे आर यूजिंग एंड लुक एट दैट एंड ट्राई टू फाइंड आउट। सो उनकी तस्वीरें भी उन्होंने ली। ये उनका वर्कशॉप है। देखिए वो बूढ़ा आदमी जो वहां बैठा हुआ है इज अबाउट 75 years old and he is still working. Yes. And जब मैं कह रहा हूँ still working, तो उनको लगा कि फिर तो मैं क्या करूं, घर में बैठ जाऊं क्या? I asked him that why are you working? He said why should I not? Yes. And he simply asked me and I was kind of speechless. Yes. Why should he not? Yes. So and then you see the other thing is that यहाँ पर ये काम कर रहा है और ये लोहा उनका आग जल रही है और इसको वो पीट रहे हैं, फोर्ज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फोर्जिंग द आयरन। ओके एंड देन माय किड्स आर आस्किंग एंड ही इज आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। दिस इज बीइंग क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एंड देन दे आर काइंड ऑफ डेवलपिंग सम बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लोहे के साथ काम करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज आयरन स्मेल्टिंग। मे बी दे आर नॉट सीइंग द स्मेल्टिंग, they are only seeing how the iron work is being done, but these were the people who were the original iron smelters. इनकी एक और कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहानी बिल्कुल होगी। एक क्वेश्चन भी है मेरे जहन में। जैसे आपने जो भी तस्वीरें हमको दिखाई उसमें एक चीज हमने नोटिस की, मतलब खासकर मैंने, कि वो लोग कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। कोई सेफ्टी गियर उन्होंने नहीं लगाया हुआ है, लेकिन उन्हें आई एम श्योर चोट नहीं लगेगी, क्योंकि वो अपने काम में कहीं ना कहीं पारंगत हैं। उन्हें मालूम है कि कैसे पीटना है, कैसे गर्म करना है, और उन्हें कोई चोट नहीं लग रही है। ये बात बच्चों ने पूछी
अच्छा, और अच्छा। उनको बुरा लगा ये देख के कि उनके पास कोई सुरक्षा का कोई गियर नहीं है। उन्होंने पूछा उनसे, उसने बोला नहीं, हम तो आंख मूंद के भी चलाएंगे अगर घन उसको बोलते हैं हथौड़े को। दे से दैट इवन इफ वी आर क्लोज्ड आईज वी विल नॉट मिस। दैट इज द प्रैक्टिस दैट वी हैव, दैट इज द exactness that we have achieved in doing certain। इसी वजह से मैंने उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, पारंगत, और वाकई में ये काबिल तारीफ है। अदरवाइज हम अपने घरों में कुछ एक छोटा सा कील लगाना होता है तो शायद घायल कर लेते हैं, हमें नहीं लगाना आता क्योंकि वो हमारा काम नहीं है जी। और अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें या कोई भी काम, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो कहा ही इसीलिए जाता है और पढ़ाई में भी ये उतना ही कारगर साबित होगा। तो सर ने जैसा कहा कि आपको इंटरेस्ट जगाना है वो बहुत जरूरी है और आप कर भी रहे हैं, तो मुझे लगता है आप कंटिन्यू करें इसको। बिल्कुल। So then so near and so far was my understanding कि मैंने बच्चे से लोहे के बारे में पूछा था उस दिन और उनको ये नहीं समझ में आया कि लोहा क्या है। नेक्स्ट क्लास जब मैंने ली तो देन आई शोड देम दैट, एक स्टील का ग्लास मैंने उनको दिखाया और मैंने कहा कि क्या ये ग्लास जो है वो आयरन का बना है, एंड इट वाज अ डिवाइडेड हाउस। किसी ने कहा हाँ, किसी ने कहा नहीं, फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये तो स्टील का बना हुआ है जी, एंड दैट देन स्टील इज नॉट आयरन। ये सवाल था। ओके। अब बच्चे उस पर विचार कर रहे हैं कि स्टील आयरन है कि नहीं है, और तब सो आयरन एंड स्टील आर डिफरेंट, and if iron and steel are different then what, there is a pin drop silence in the class। okay। कुछ अब उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। फिर ये हुआ कि it's the same kind, is it some kind of an alloy of iron? एक बच्चे ने ऐसे, मैंने and I encourage guessing, आप अंदाज करिए, क्योंकि गेस अगर नहीं करते हैं आप तो आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसमें। और गेस करना और हाइपोथेसिस, इसको जो हाइपोथेसाइजिंग कहते हैं, इट्स अ वैलिड मेथोडोलॉजी ऑफ डूइंग साइंटिफिक इंक्वायरी, राइट। सो यू मस्ट गेस। सो उसने कहा कि इट्स सम काइंड ऑफ एन एलॉय, एंड देन आई सेड दैट नो इफ इट इज आयरन, द अदर चाइल्ड सेज दैट इफ इट इज आयरन इट मस्ट कोरोड। ओके, आप देखिए। And then I asked them to find out a counter example, and other child says that no, iron pillar at Qutub Minar does not get rusted. It is made up of iron, but it is not getting rusted. So that is what is called counter example. अगर स्टील आयरन है तो रस्ट लगना चाहिए उसमें। दूसरा कहता है नहीं, ये जरूरी नहीं है, आयरन में रस्ट नहीं लगना। कुतुब मीनार जाके देखो, वहां पर एक आयरन पिलर है, उसमें तो रस्ट नहीं लगती है। एनीवे, सो एक अब मैं आपको बताऊं कि इस जगह पे मैंने बच्चों को ये बताया कि आप देखिए कि स्टील का क्या महत्व है आपके जीवन में, और ये एक छोटी सी वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं जी। एक बार जरा इसकी ओर। Develop new skills and new technologies. Making plaster from limestone was a major technological breakthrough. The stones had to be heated for days at a time, at a temperature of 1,000 degrees. It may seem insignificant today, but understanding how to work with fire was the first step towards forging steel, a technology that would transform the world. ये जो आपने एक शॉर्ट फिल्म देखी, ये इसमें कोई भी व्यावसायिक काम नहीं है, ये बच्चों की परीक्षाओं के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल की गई है। तो इस तरीके का कोई भी इसमें आप वो ना जोड़ें और ज्ञान अपना बढ़ाएं, ये हमारा मानना है। और हमारे पास मतलब वाकई ये इतना इंटरेस्टिंग सेशन हमारा चल रहा है कि सिर्फ 10 मिनट रह गए, पता ही नहीं चला बस सर वक्त का। और ये हमेशा दिक्कत होती है कि एक पूरे चैप्टर के आधे भाग को भी खत्म करने के लिए 45 मिनट कम होते हैं, पर मैं इसीलिए मैंने अधिकांश चीजें पीपीटी पर लाकर रखी हैं, सो दैट अगर बाद में भी कोई देखे तो उसको समझ सके। तो मैं थोड़ा सा पेस अप करना चाहूंगा इसको। दूसरा एक इंटरेस्टिंग सवाल मैंने जो बच्चों से पूछा वो ये पूछा कि क्या जो लोहा है वो अब थोड़ी सी जानकारी हो चुकी उनको, उन्होंने देखा कि कैसे लोहा समझना और उसका स्टील बनाना ये इंपॉर्टेंट काम है। अब उनको लगा कि आयरन क्या जो है वो पत्थर है
पत्थर और आयरन में क्या अंतर है, इफ इट इज नॉट वाई. ओके, एंड देन उन्होंने डिस्कस किया अपने क्लास में कि आयरन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन पैरामीटर्स पे, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और फंक्शनैलिटी. इन सारी चीज़ों पर उन्होंने पत्थर और लोहे को कंपेयर करके देखा कि पत्थर की जगह लोहे का क्या एडवांटेज है. पर सवाल ये था कि क्या आयरन पत्थर है, और ये जगह थोड़ी सी ट्रिकी सी जगह थी जी. अब उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो फिर चर्चा होती है कि रॉक है, और रॉक को क्या कहते हैं, रॉक किसको कहते हैं, ठीक है, उसमें मिनरल किसको कहते हैं, उसके बाद ओर किसको कहते हैं, और उसके बाद मेटल किसको कहते हैं. आप देखिए कि मेटल जो है वो तो रॉक से निकलता है जी. आप लेटेराइट सॉइल होता है, मिट्टी होती है, वहाँ भी मेटल हो सकते हैं और वहाँ से आप लोहा निकालते हैं. बेसिकली आप पत्थर निकालते हैं जिसमें लोहे की मात्रा होती है. अब सो यहाँ पर ये चार जो कॉन्सेप्ट हैं, रॉक क्या है, मिनरल क्या है, ओर क्या है, एंड देन सो द final point is that rock contains mineral which in large concentration are called ores and these are mined for metal. Okay. ठीक है ना. But this is an interesting question that students get hooked Yes. onto and they start examining. उनको Right. ये बात समझना है कि और किसको कहते हैं. Right. So then, so what is steel? Back Now to the main, this question back to the main remains. question. This question remains, Yes. and I while I allowed them to think about what is steel, but then they I gave them just a basic understanding that steel is an alloy of iron, where the carbon content is less than around 2% carbon, and then there are other elements also like magnesium is there, like phosphorus is there, और जो stainless steel जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसमें क्रोमियम एडेड होता है. Okay. अब आप देखिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो आयरन स्मेल्टिंग की बात कैसे समझेंगे, तब तो फिर किताबी बात रह जाएगी. जी जी. तो यहाँ से हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं जी. और फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं. सो व्हाट इज स्टील जब हम बात करते हैं, हम आई विल स्किप वन वीडियो एंड आई वांट टू come to what is given in the textbook. And then so यहाँ पर जब आप बात करते हैं, स्टील हमने बता दिया क्या है, उसके बाद आप आते हैं कि वुड्स स्टील की बात हम करने लगते हैं. यहाँ पर जो वुड्स स्टील है, सो ये आप जो सामने देख रहे हैं अभी, वो टीपू सुल्तान की तलवार है. ओके. ठीक है, और ये टीपू सुल्तान की तलवार आपके टेक्स्ट बुक में, बच्चों के टेक्स्ट बुक में है, बट जब हम उसको थोड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर ढंग से वो नज़र आती है. और देन यू आर लुकिंग एट कि इसको हम वुड्स स्टील बोलते हैं. नाउ व्हाट इज वुड्स स्टील? यस. है ना. तो इस बात को देखने के लिए एक बार और बहुत छोटी सी एक वीडियो हम एक देख लेते हैं, और उस वीडियो के साथ आप कुछ बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके का The wood swords of India were known throughout the world to be the finest swords of steel. It is believed that this steel was developed in India around 300 BC. The word woods is possibly a mistranscription of wook, an angelicized version of uruku, which means melting in Tamil and many Dravidian languages. Woods was precious, or metal worthy of the greatest warriors. Small wonder. 30 pounds was deemed a perfect gift for Alexander the Great in an act of friendship by King Porus of Sindh. This steel found immense popularity in the Arab world, who even devised a phrase for it when they beheaded an enemy. They called it Jawab-e-Hind, an answer by the Indian blade. The archived records of the Dutch East India Company read, between the year 1670 and 1681, about 150,000 pounds of steel was exported from Masolipatnam port in Andhra to the Dutch ports in Batavia region of Netherlands. Every year, more than 10,000 ingots of this steel were exported from Coromandel Coast to Persia and Iran. From there, it was sold to Europe until 1821 CE, fueling a large appetite for steel. This was the dawn of the Industrial Revolution of Europe. तो कई मायने में भारत वाकई सोने की चिड़िया. ये फिर एक उदाहरण यहाँ पर आपने सुना और देखा, और आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि समय का बहुत अभाव है. रिक्वेस्ट मिस्टर वागीश.
मैं अब वुड स्टील के बारे में जो मैंने बच्चों को ये वीडियो दिखाई और उसके बारे में कुछ उनको बताया कि वुड स्टील क्या होती है, और एक बहुत ही बेहतरीन, और मैं चाहूँगा मेरे टीचर्स अगर इसको देख रहे हैं तो भारत की छाप एक बहुत पुराना सीरियल है जो जब टीवी का टाइम शुरू हुआ था उस समय तब बनाई गई थी, और उस समय उस वुड स्टील को बनाने वाले जो क्रूसिबल्स होते हैं और जो ट्रेडिशनल लोग थे उनके बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी है। तो उसके एपिसोड नंबर 10 में जहां कॉलोनियलिज्म और इंडियन क्राफ्ट्समैन की चर्चा है, भारत की छाप, उसको बच्चों को दिखाएं तो उससे बहुत और अधिक जानकारी मिल सकती है। और ये वुड स्टील जो है ये बहुत मज़ेदार काम था। एक बार फिर से जो है सो न्यू फॉरेस्ट लॉ, अब क्या हुआ, इतना फ्लरिशिंग ट्रेड था हिंदुस्तान में, दे वर डूइंग सच ग्रेट जॉब ऑफ क्रिएटिंग सच फाइन स्टील, टीपू सुल्तान की उस तलवार का कमाल था। व्हाट हैपेंड टू दैट? जो टेक्सटाइल में हुआ वही ऑलमोस्ट यहाँ भी हुआ, और ये हुआ कि एक फॉरेस्ट लॉ बना दिया गया, और दीज फॉरेस्ट लॉ प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू द जंगल, और वहाँ से लकड़ियाँ लाने की मनाही थी। जंगल में ही जो ओर थे वो भी मिलते थे, वो भी उनको मना कर दिया गया। कुछ जगहों पर उनको जाने की इजाज़त थी, कुछ जगहों पर उनको जाने की इजाज़त थी, मगर उस पर बहुत हैवी टैक्स लगा दिया गया। यही वो समय था जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, और अब वहाँ से लोहा बनकर यहाँ आ रहा है जी। तो अब वहाँ से लोहा बनकर यहाँ आ रहा है, तो लोहा का काम करने वाले लोग जो लोहा स्मेल्ट करके लोहा निकालते थे उनका काम महंगा हो गया, क्योंकि वो जंगल में नहीं जा सकते हैं, और इंग्लैंड से आया हुआ इंडस्ट्रियल लोहा सस्ता है, उसको लेकर लोग बर्तन का काम करने लगे। उसके बाद उनका एक बार फिर से जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन थे, जो लोहे का काम करने वाले लोग थे, दे फेल आउट ऑफ जॉब। हो ही जाएगा, क्योंकि अपने ही देश में अपना ही जंगल से नहीं ले सकते हैं, बाहर से जो आ रहा है वो लेना है। यस, लास्ट 3 minutes दैट आई हैव, आई वांट टू क्विकली गो ऑन टू टेल यू इज दैट एक तरफ जहां की लोहे का ये प्रॉब्लम हो रहा था, वहीं पर टैक्स ज्यादा लग रहे थे, डिमांड जो है बाहर के लोहे का सस्ता हो गया था, वो हो रहा था, और नया कंपटीशन हो गया, एंड दैट इज हाउ दे लॉस्ट आउट। अब एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार क्विकली देखें कि यही वो समय था जब जमशेदजी टाटा ने स्टील इंडस्ट्री शुरू की भारत में, और बहुत मज़ेदार 20 साल उन्होंने इस पर अध्ययन किया, एंड देन ही डिसाइडेड। सो कैसे वो तय करते हैं कि एक जगह कहाँ उनको अपना इंडस्ट्री लगाना है। ये देखिए, ये कलकत्ता है उस तरफ आप, और यहाँ पर आप कोल मिल रहा है आपको मयूरभंज के इलाके में, जी। आपको उसके साथ आयरन ओर मिल रहा है, सॉरी कोल मिल रहा है झरिया के इलाके में, आयरन ओर मिल रहा है मयूरभंज के इलाके में। जो मार्केट है और जो पोर्ट है वो कलकत्ता में है जी। सो इसलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो है वो जमशेदपुर, जहाँ की स्टील इंडस्ट्री आपने लगाई। दूसरी बात कि कोई इंडस्ट्री इसलिए लगेगी कि आपको इन सारी चीजों की जरूरत है आपके पास, ठीक है। सो इट वाज एन अपॉर्चुन टाइम। उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1903 में के अराउंड, अर्ली 20th सेंचुरी में उन्होंने ये स्टील इंडस्ट्री लगाई। उनके बारे में संदेह था कि उनका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया, और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो इंग्लैंड में जो लोहा पैदा हो रहा था उसकी ज़रूरत युद्ध में ज़्यादा पड़ गई, लेकिन इंग्लैंड को यहाँ भी हिंदुस्तान में भी ज़रूरत थी। रेल बन रहा था और बाकी चीज़ें हो रही थी, कारखाने लग रहे थे। दैट वाज द टाइम जब ये काम शुरू हुआ इनका, और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ, ब्रिटिश इंपोर्ट डिक्लाइन करा, और नेशनलिस्ट मूवमेंट तब तक ग्रो कर रहा था। और सारे काम होने के बाद जो है इस इंडस्ट्री को सडनली जो टाटा का स्टील था उसकी डिमांड बढ़ गई और बहुत बड़ा काम हो गया। सो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ अंत में कि देखिए, डोर ऑफ नॉलेज ओपन्स व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस। यस, बिल्कुल सही। that is how I look at it। बाकी सारी चीजें तो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं, you can go and you can read the textbook in any case, but trying to understand and look at these doors. These doors are the workmanship of the Indian artisans. Yes. Take a look around yourself and then you will see knowledge unfolds itself, and then you get into the realm of fascinating realm of knowledge. चलिए, थैंक यू वेरी मच
सो आई मस्ट थैंक मिस्टर वागीश कुमार झा, आप यहाँ तक आए और ये इतना वंडरफुल सेशन आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, आई मस्ट से आपने क्रिएट कर दिया और हम सबका इंटरेस्ट बढ़ाया, और उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर ये अब यहाँ पर आज खत्म हो गया होगा, तो ये सेशन के साथ ये चैप्टर भी कंक्लूड होता है, तो आप चैप्टर पूरा पढ़ने के लिए एक बारी सेशन 1 और सेशन 2 दोनों को एक साथ देखिएगा और रिवीजन करिएगा, और डेफिनेटली क्वेश्चंस आप पूछेंगे तभी आपकी जो नॉलेज है, नॉलेज के जो डोर है वो खुलने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू। ये सेशन यही समाप्त होता है, अगला सत्र लेकर हम फिर हाजिर होंगे, और कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन सेंड अस एन ईमेल ciet.kishoremanch@gmail.com। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।